بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میں ایک بہت بڑی حویلی کا چوکیدار ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں اور تینوں ہی بہت پیارے اور میرے فرمانبردار ہیں۔ ہم اس حویلی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں۔ میری تنخواہ چونکہ قلیل ہے، اس لیے میری بیوی بھی گھریلو ملازمہ ہے اور ہمارے بچے بھی حویلی میں گھومتے رہتے ہیں۔ حویلی کے تہہ خانے میں ایک ایسا کمرہ تھا جہاں ملازمین سمیت سب کا جانا منع تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ تہہ خانے کی طرف کبھی مت جانا۔ ایک دن میری بیٹی کھیلتے ہوئے تہہ خانے کی طرف چلی گئی۔ مجھے بچوں نے بتایا تو میں اسے وہاں سے نکالنے کے لیے بھاگا۔ ابھی میں تہہ خانے کی سیڑھیوں میں پہنچا تھا تو مجھے اپنی بیٹی کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ تہہ خانے میں چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میں نے ٹارچ چلائی تو 2 چمکتی آنکھیں دکھائی دی۔ وہ ایک جن زادہ تھا جس نے میرا نام فدا خان ہے اور میں پنجاب کی ایک بہت بڑی حویلی کا چوکیدار ہوں۔ میری ڈیوٹی اکثر رات کے وقت لگائی جاتی ہے، دن کے لیے الگ چوکیدار ہے۔ یہ حویلی بہت پرانی اور بڑی ہے، اس کی 3 منزلیں ہیں اور بہت سے کمرے، بڑی بڑی راہداریوں کے ساتھ کھلے دالان اس حویلی کو خاص بناتا ہے۔ ملک صاحب جو اس حویلی کے مالک ہیں، وہ اور ان کے بھائی اپنے پورے خاندان کے ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ یہاں کل ملا کر 40 افراد رہتے ہیں، جن میں ہم 17 لوگ تو یہاں ملازم ہیں۔ میرے 3 بچے ہیں اور مہنگائی کے اس دور میں میری قلیل تنخواہ میں گزارا مشکل ہے، اس لیے میری گھر والی بھی یہاں ملازمت کرتی ہے۔ وہ بڑی مالکانی صاحبہ کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے کام کرتی ہے۔ میں اور میری دونوں بیویاں یہاں 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں۔ ہمارے بچے سارا دن حویلی کے دالان اور راہداریوں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک صاحب اور ان کے بھائی کا خاندان بیرون ملک چھٹیاں گزارنے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں اس وقت صرف ہم ملازم تھے جو حویلی کے دیکھ بھال کے لیے ہمہ وقت موجود تھے۔ تب پہلی بار میں تہہ خانے کی طرف گیا۔ مجھے لوہے کی ایک جالی درکار تھی۔ گھر کے ملازموں سے سنا تھا کہ تہہ خانہ ایسی بیکار چیزوں سے بھرا پڑا ہے، تو میں بس یوں ہی اس جالی کی تلاش میں تہہ خانے میں چلا گیا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تہہ خانہ اتنے لمبے عرصے سے بند تھا، کیونکہ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی بو میرے نتھنوں سے ٹکرائی جس نے میرا سانس لینا محال کر دیا۔ مجبوراً مجھے رومال سے اپنا ناک ڈھانپنا پڑا۔ تہہ خانہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ میں نے ٹارچ جلائی اور حوصلہ کر کے سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ ابھی 3-4 سیڑھیاں ہی اترا تھا کہ ایک دھماکے سے تہہ خانے کا دروازہ بند ہوا۔ میں ایسے اچانک دروازہ بند ہونے پر گھبرا گیا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یقیناً ڈر جاتا۔ گپ اندھیرا اور دروازہ بند۔ میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ یکا یک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل پاس کھڑا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب تو میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ تہہ خانے میں کوئی چہل قدمی کر رہا ہے۔ یہ چہل قدمی آہستہ آہستہ دھما چوکڑی میں تبدیل ہونے لگی۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا میری نظروں سے سب اوجھل تھا، بس میں محسوس کر سکتا تھا۔ زور زور سے گھنٹیاں بجنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی غیر مرئی مخلوق ہے جو مجھے تو دیکھ رہی ہے، لیکن میں اسے نہیں دیکھ سکتا، بس محسوس کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ یہاں مزید کچھ ہوتا یا یہ مخلوق مجھے نقصان پہنچاتی، میں نے بس یہ جگہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آخری سیڑھی پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ دروازہ ایک دم سے کھلا اور ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے دھکا دیا ہو۔ میرے باہر نکلنے کی دیر تھی کہ دروازہ پھر سے بند ہو گیا۔ میری سانس ابھی تک تیز چل رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ میں نے دیکھا اور محسوس کیا وہ میں کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی وجہ میرے 2 خدشات تھے۔ پہلا یہ کہ کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، الٹا سب میرا مذاق اڑائیں گے کہ فدا خان ڈر گیا۔ دوسرا خدشہ یہ تھا کہ کیا معلوم ملک صاحب کو اس سب حقیقت کے بارے میں علم ہو اور انہوں نے سب سے چھپا رکھا ہو کہ کوئی ڈر کے مارے حویلی نہ چھوڑ جائے۔ ان 2 باتوں کو سامنے رکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتاؤں گا، ملک صاحب کو بھی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تہہ خانے کا دروازہ کھولنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو گئی۔ حویلی کے اندر چھوٹے چھوٹے سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے جن میں ہم سب ملازمین اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھیں۔ خوشی اور غم میں ہم سب ساتھ ہوتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ
ایک کی آنکھیں نم اور دوسرا بندہ کہہ کے لگانے میں مصروف ہو۔ ہم سب کے بچے عام بچوں کی طرح گل مل کر کھیلتے۔ بچوں کو پڑھانے کا رجحان ویسے ہی کم تھا۔ رہی صحیح کسر دن بدن بڑھتی مہنگائی نے پوری کر دی۔ ہم دونوں میاں بیوی مل کر کماتے، پھر بھی مشکل سے گھر کا کچن چلتا۔ وہ تو اللہ بھلا کرے بڑے ملک صاحب کا کہ وہ ہم جیسوں کی بڑی مدد کر دیا کرتے۔ ملک صاحب کے پاس مربوں کے حساب سے زمین تھی جہاں سے سالانہ گندم چاول آ جاتے۔ ملک صاحب دریا دل آدمی تھے، ہم ملازموں میں بھی گندم اور چاول تقسیم کرتے۔ یوں سال کی گندم اور چاول تو ہمیں گھر بیٹھے مل جاتے، باقی دال دلیا پورا کرنا بھی مشکل ہی لگا کرتا۔ میری بیٹی بڑی ہو رہی تھی اور ہم اب سوچ رہے تھے کہ اس کی شادی کیسے ہوگی۔ والدین تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے۔ یہی حال میری بیوی کا بھی تھا۔ وہ ہر چھوٹی بڑی چیز اپنی گلبانوں کے لیے جمع کرتی جا رہی تھی۔ ہم غریب لوگوں کی خوشیاں کم اور غم بڑے ہوا کرتے ہیں۔ خوشی تو گویا ڈھونڈنی پڑتی ہے، بچیوں کے بڑے ہونے کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ ایسے لگتا کہ گلبانوں کی پیدائش کل کی ہے اور یہ اتنی بڑی ہو گئی، بس وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آج میری بیٹی پورے 16 سال کی ہو گئی ہے۔ ادھر آ گلبانو، میں نے اسے آواز دی۔ جی بابا جان، آج میری بیٹی مجھے کھانا دے گی، میں نے اسے کہا۔ جانے کیوں مجھے اس پر زیادہ ہی پیار آ رہا تھا۔ شاید جلد اس گھر سے اس کی رخصتی کا خیال مجھے بے چین کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گل بانو میرے لیے روٹی لے آئی۔ میں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ کہنے لگی، بابا جان آج خیریت ہے؟ میں نے اس سے کہا، ہاں میری بچی خیریت ہے، بس سوچ رہا ہوں کہ تجھے رخصت کر دوں گا تو کھانا کون دے گا۔ یہ سن کر گل بانو کے چہرے پر حیا کی سرخی لہرائی۔ وہ شرما کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اس کی ماں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا اتنی گنجائش ہے کہ اس سال ہم کوئی مناسب سا رشتہ دیکھ کر گل بانو کو اپنے گھر کا کر دیں؟ اس نیک بخت نے جواب دیا، خان جی بیٹیاں اپنے گھروں کا نصیب لکھا لے کر جاتی ہیں، بس دعا کریں اچھا خامند ملے، گھر چیزوں سے نہیں انسانوں سے آباد ہوا کرتے ہیں۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر مطمئن ہو گیا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرا چھوٹا بیٹا بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، بابا جان باجی حویلی کے کمرے میں چلی گئی ہے جہاں اپنے سب بچوں کو جانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ میں نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا، وہ تہہ خانے میں کیوں گئی ہے؟ اسے کسی نے روکا کیوں نہیں؟ میں چیختا چلاتا حویلی کے اندر جا رہا تھا۔ میری بیوی اور دونوں بچے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ تہہ خانے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر میں رک گیا، اپنی بیوی اور بچوں سے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگ اندر نہیں آؤ گے۔ یہ کہہ کر میں نے دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ تہہ خانے میں 4 سو روشنی پھیلی تھی۔ چند دن پہلے میں نے جو اتنی سخت بدبو برداشت کی تھی اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں حیران پریشان کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ کا دباؤ بڑھتا ہی چلا گیا۔ مارے دہشت کے میرا رنگ سفید پڑ گیا، سارا جسم پسینے میں بھیگ گیا۔ خوف کے مارے میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اچانک میرے کندھے پر ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی اور وہ جو بھی مخلوق تھی اس نے مجھے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے سیدھا کر لیا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں دوست، ہم سے ڈرو مت۔ تمہاری بیٹی نے ہماری جانوں پر جو احسان کیا ہے ہماری نسلیں بھی اس کا قرض نہیں چکا سکیں گی۔ نرم لہجے میں مجھے مخاطب کیا گیا۔ میرا خوف قدرے کم ہوا تو میں نے آہستگی سے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت تھا۔ میں نے اتنا نور آج تک کسی چہرے پر نہیں دیکھا تھا۔ اجنبی مسکرایا اور کہنے لگا، کیا ہوا ہے خان جی؟ میں ہکا بکا اس کی طرف دیکھنے لگا کہ یہ مجھے کیسے جانتا ہے۔ وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، میں ایک جن زادہ ہوں، آپ کی بیٹی نے میری جان بچائی اور وہ یہاں میری مرہم پٹی کرنے آئی تھی۔ مجھے حیران ہوتا دیکھ کر وہ بولا، خان صاحب اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں تفصیلاً تعارف کروا دیتا ہوں اور آپ کی حیرانی بھی دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں مسلمان جنات کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ حویلی جس میں آپ رہائش پذیر ہیں یہ گزشتہ کئی سالوں سے ہماری رہائش کا ہے۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ اس حویلی میں ہماری نسل اب تک کی 4تھی نسل ہے جو مسلسل یہاں رہتے رہے اور کچھ عرصہ قبل یہاں کے مالک سے خفا ہو کر اپنی رہائش کا تبدیل کرنے پر مجبور ہوئے۔ ہمارے کئی قبائل یہاں رہتے تھے۔ جنات اس سرزمین پر انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں،
वो सिर्फ दरख्तों पर नहीं पाए जाते, वो आम घरों में आप इंसानों के दरमियान मौजूद होते हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं होती कि आपकी दुनिया में दखल दे सकें। ये तय खाना कई साल से हमारा मस्कन था। बड़े मालिक साहब यानी कि तुम्हारे मालिक के वालिद साहब इस जगह की सफाई का ख़ास ख्याल रखा करते थे, लेकिन अब हवेली के मालिक ने इसे काट कबाड़ से भर दिया। नतीजे में यहाँ चूहों की बहुतात हुई, जिससे हमारा यहाँ रहना दो बहर हो गया। हमने कई बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन कोई फ़ायदा न हुआ। वो उल्टा हमसे डर कर भाग गया और तहखाना हमेशा के लिए मकफल कर गया। अपने घर वालों को भी सख्ती से हिदायत की कि यहाँ किसी को दाखिल न होने दिया जाए। तो हमने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। तुम भी डर के मारे भाग गए और कभी न लौटे। मैं जख्मी हालत में यहाँ पड़ा ऐसे ही मर जाता और मेरे कबीले ख़ानदान में किसी को भी खबर न होती। अगर तुम्हारी बेटी ने गलती से दरवाज़ा ना खोला होता तो। क्या मतलब? मेरी बेटी कहाँ है? मुझे एकदम याद आया था कि मैं यहाँ बेटी के पीछे ही तो आया था और उस जिनजादे ने मुझे अपनी बातों में लगा दिया। मेरी बच्ची कहाँ है? अब की बार मैंने ज़रा सख्ती से पूछा तो वो बोला, आ जाएगी कुछ देर में, क्यों परेशान हो रहे हो? खान साहब, कुछ देर में क्यों? उसे अभी हाजिर करो, मैं गुस्से से बोला था। इतनी देर में जिनजादे ने अपनी अंगूठी घुमाई और मेरी बेटी मेरे सामने थी। मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। बाप होने के नाते मेरे खदशात अपनी जगह दुरुस्त थे। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, जिनजादे ने गुलबानो से पूछा, हाँ बेटी बताओ, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? कैसा लगा हमारा इलाका? मेहमान नवाजी से लुत्फ उठाया या ऐसे ही भेज दिया मेरे कबीले वालों ने? जिनजादा गुलबानो से हल्के फुल्के सवाल कर रहा था, जिनसे मेरी घबराहट काफ़ी हद तक कम हो गई। जी बाबा जान, बहुत ही खूबसूरत इलाका है जहाँ आप लोग रह रहे हैं। उम्मीद है आप भी जल्द इस काबिल हो जाएंगे कि अपने घर वालों से मिल सकें। आज या कल में आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे ना? गुलबानो ने पूछा तो वो जिनजादा अपनी टूटी हुई टांग और बाजू देखने लगा। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे हुआ? तो वो बोला, लंबी कहानी है खान जी, और आपके घर वाले तय खाने के बाहर आपका और गुलबानो का इंतज़ार कर रहे हैं। वो उदासी से मुस्कुराया, शायद उसे अपने वालिदैन याद आते हों। मैंने सोचा और उससे कहा कि मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगा, मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा। तुम परेशान न हो, अल्लाह अपना करम करेगा। जल्दी चलने फिरने लगोगे और ख़ानदान के पास जा सकोगे। अब मुझे इजाज़त दो, मेरी बीवी और बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। इतना कहकर मैंने गुलबानो को साथ लिया और तय खाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बाहर मेरी बीवी और बेटियों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं और गुलबानो जब तय खाने से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई और मेरी बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम दोनों सही सलामत वापस आए। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को सख्ती से मना कर दिया कि घर के बाकी मुलाजमों से इस बात का जिक्र ना करें। मुबादा कोई किस तरह की बातें करता फिरे। ज़ाहिर है हम किसी की सोच तो नहीं पढ़ सकते कि कोई किस अंदाज में सोच रहा है। हम सब सर्वेंट क्वार्टर में आ गए। मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज रात में वहाँ जाऊँगा ताकि जिनजादे की कहानी सुन सकूँ कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो शदीद ज़ख्मी हालत में यहाँ पड़ा हुआ है और उसका ख़ानदान भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। जी खान साहब, जैसे आपकी मर्ज़ी, बस ध्यान रखिएगा कि वो आपको कोई नुकसान न पहुँचा दे। तुम फिक्र ना करो, वो मुसलमान जिनजादा है, उम्मीद है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तुम पुरसुकून रहो और भूल कर किसी से इस बात का तज़किरा मत करना। लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने उसे समझाया तो उसने सर हिलाया। मैं दिल में मुतमईन था कि अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे किसी बड़ी आफत से महफूज रहे, और दिमाग में अंदेशे भी थे कि जाने वो जिनजादा के नालात का शिकार हुआ कि आज बेबसी की तस्वीर बना बैठा है। खैर, मैंने रात का इंतज़ार किया और जब पूरी तसल्ली हो गई कि हवेली के सारे मुलाजमीन सो गए तो मैं अपने क्वार्टर से निकला और हवेली की तरफ चल पड़ा। मैं चूँकि चौकीदार था इसलिए मेरे पास पूरी हवेली की चाबियाँ मौजूद थी। मैंने हवेली का मरकज़ी दरवाज़ा खोला और दबे पाँव उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहाँ मलिक साहब ने हम सब लोगों का जाना मना कर रखा था। जब मैं कमरे के पास पहुँचा तो मुझे सरगोशियों की आवाज़ आ रही थी। मैं वहीं रुक गया और कान लगाकर बातें सुनने की कोशिश करने लगा। हल्की फुल्की खुसर फुसर अब बुलंदो बाला कहके में तब्दील हुई। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं। मेरा दिमाग मुझे रोक रहा था और दिल कह रहा था
कि एक बार जाकर उस जिनज़ादे की दास्तान सुन लेनी चाहिए, हो सकता है उसके किसी काम आ सकूं। दिलो दिमाग में चलने वाली इस जंग में मेरा दिमाग जीत गया और मैं किसी अनहोनी के डर से वापस आ गया। अगले दिन सुबह खबर मिली कि हवेली के एक मुलाजिम का कत्ल हो गया है और उसकी लाश तहखाने से मिली है। खबर देने वाला कोई और नहीं, मेरी बेटी गुल बानो थी। जहां मुझे इस खबर से खौफ महसूस हुआ, वहीं इस बात पर डर में भी मुब्तला हो गया कि कहीं मेरी बेटी उस जिनज़ादे के ज़ेरे असर तो नहीं है। दिल में तरह तरह के वसवसे जन्म लेने लगे। मैं सीधा अपनी बेटी का चेहरा तकता रह गया। गुलबानो, ये सब तुम्हें किसने बताया है मेरी बच्ची? मैंने उससे पूछा तो वो बोली, बाबा जान, बाहर सब बच्चों को पता है। आपकी तबीयत खराब थी तो आप आज बाहर नहीं निकले। हवेली में सभी लोग कत्ल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और चप्पल पहनकर क्वार्टर से बाहर चला गया। बाहर वाकई सब मुलाजमी ने हजूम बना रखा था। रात की ड्यूटी वाला चौकीदार कत्ल हुआ था, लेकिन ये सब किसने किया? उस कत्ल की क्या वजह बनी? फिलहाल इस बारे में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। सभी बस अंदाजे लगाने में मसरूफ थे। मैंने आगे बढ़कर रहीम चचा से पूछा कि किसी ने मलिक साहब को इत्तला की है? चचा पहले तो खामोश रहे, फिर बोले, उन्हें हम जैसों के कत्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता खान जी। वो भला अपनी छुट्टियां क्यों खराब करेंगे हमारी वजह से? और ये कत्ल का मामला भी मुझे ऐसे लगता है जैसे चोरी की वारदात को रोकने की कोशिश में करीम बख्श की जान गई हो। हवेली का सारा सामान बिखरा पड़ा है, कोई समझ नहीं आ रही क्या करें। आप फिक्र न करें रहीम चचा, कुछ पता लगवाते इस सारे मामले का। मैंने बहुत जोश से कहा और उन्हें लेकर हवेली के अंदरूनी हिस्से में चला गया। यूँ लगता कि वाकई यहाँ मुनज़्ज़म तरीके से चोरी का प्लान बनाओ और करीम बख्श बेचारा उन चोरों को रोकते हुए अपनी जान से गया। मैंने पुलिस को इत्तला दी कि क्योंकि हम इस वाक़े की तह तक नहीं पहुंच सकते थे। पुलिस हस्ब रिवायत अपने वक्त पर पहुंची, सब मुलाजमीन को हाजिर किया। पुलिस का अपना एक तरीका है तफ्तीश का जो वो सदियों से इस्तेमाल करते आए। उस कत्ल की तफ्तीश में भी उन्होंने रवायती हरबा इस्तेमाल किया, यानी सब मुलाजमीन को कतार में खड़ा किया और बड़े अफसर ने सबसे पहले कहा कि अगर तुम लोगों में से कोई भी इस कत्ल में शामिल हुआ, चाहे उसने कातिलों की मदद की हो या मकतूल की मुखबरी वगैरह, तुम में से कोई भी इस काम में मुलव्वस हुआ तो उसे चाहिए कि कातिलों के नाम बताकर वादा माफ गवाह बन जाए। अगर तफ्तीश के आखिर में तुम में से कोई भी शामिल हुआ तो उसे पुलिस मुकाबला करवा कर कुत्तों की मौत मारूंगा। इंस्पेक्टर सीधी तरह बात करते एकदम धमकी पर उतर आया, तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो। मेरे इलाके में चिड़िया भी बगैर इजाजत के पर नहीं मारती। तुमने बंदा मारने की जुर्रत कैसे की? इंस्पेक्टर जलाल में आया, तुमने दाऊद खान की गैरत को ललकारा है। मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक किसी मुकदमे में असल कातिलों को गिरफ्तार करके फांसी के फंदे तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लिया। और ये वारदात तो मेरे अजीज जान दोस्त मलिक साहब की हवेली में हुई है। इसे कैसे हल्का लूं? मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम लोगों से सच नहीं उगलवा लेता। इंस्पेक्टर एक बार फिर ट्रैक से उतर आया, भला हम सीधे लोगों का कत्ल से क्या लेना देना? हम सब मालिक के वफादार थे और मलिक साहब हम पर आंखें बंद करके एतबार करते। हम में से अक्सरियत मुलाजमीन की ऐसी थी जो उसी हवेली में पल कर जवान हुए। कुल मिलाकर हम 30 मुलाजिम थे जो कन्नालों पर मुहित उस हवेली की देखभाल और हिफाजत पर मामूर थे। मेरी समझ से बाहर था कि मकतूल नदीम को कोई क्यों मारेगा। उसके बजाय कोई वजह नजर नहीं आई। पुलिस ने सब मुलाजमीन से अल्फिया बयानात लिए और हमें छोड़ दिया। इंस्पेक्टर ने जाते हुए मुझसे कहा, खान जी तुम्हें कहते हैं? मैंने कहा, हाँ जी। अच्छा, तो तुमने फ़ोन किया था कत्ल का बताने के लिए? इंस्पेक्टर मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था, जैसे वो मुझे ही नदीम का कातिल समझ रहा हो। मैं हैरान परेशान उसके सवालों के जवाब दे रहा था। फिर वो बोला, तफ्तीश की गर्ज से हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा। उम्मीद है कुछ दिन में असल कातिल तक पहुँच जाएंगे। जी साहब जी, अल्लाह गारत करे ऐसे जालिमों को। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा तो मेरी पैरवी करते हुए सब बावाज़ बुलंद बोले, आमीन। पुलिस के चले जाने के बाद मैंने अपनी बेटी गुल बानो को बुलाया और उससे कहा कि मेरे साथ सर्वेंट क्वार्टर में चले। मैं गुल बानो से मालूम करना चाहता था कि वो जिनज़ादे के मुताल्लिक क्या जानती है, क्या इस कत्ल के साथ जिनज़ादे का कोई ताल्लुक है या नहीं। जब हम क्वार्टर पहुंचे तो मैंने उससे पूछा कि मुझे सच बताओ कि जिनज़ादे को कैसे जानती हो और तुम्हें इस कत्ल के बारे में कैसे मालूम हुआ? बाबा जान, वो जिनज़ादा एक मुसलमान जिन है और रहीम चचा को उस जिन ने नहीं मारा बाबा। उन्हें पुलिस के किसी फर्द ने मारा है।
क्योंकि जिस गोली से रहीम चचा फौत हुए वो किसी राइफल की नहीं, पिस्टल की गोली है, और यहाँ अब सब लोगों के पास राइफल है। फ़र्क यहीं से पता चल जाता है बाबा। पुलिस को अपनी तफ्तीश करने दें, आप खुद को इस सारे मामले को देखें, क्योंकि ये मामला जितना सीधा नज़र आ रहा है उतना सीधा है नहीं। आप बस पुलिस के साथ तावन करें, लेकिन अपनी कोशिश भी जारी रखें कातिल को पकड़ने की। रही बात जिनज़ादे की, तो इन हालात में आपका तहखाने की तरफ जाना वैसे ही मुनासिब नहीं। क्या मालूम कौन किस नीयत से यहाँ मौजूद है। जब घर का सरबराह मौजूद ना हो तो ऐसे ही काम हुआ करते हैं। गुलबानो मेरी बच्ची, मैं हैरान था कि मेरी 16 साला बच्ची कैसी बातें कर रही है, लेकिन उसकी बातें सच थी। हकीकत जितनी भी कड़वी हो उसे जुटलाया नहीं जा सकता। मुझे गहरी सोच में मुब्तला देखकर गुलबानो बोली, आपको जिनज़ादे से मिलना है तो आप तय खाने की तरफ जाए, बगैर भी जिनज़ादे से मिल सकते हैं। मैंने पूछा, वो कैसे मेरी बच्ची? तो उसने मुझे एक अंगूठी देते हुए कहा कि बाबा जान, ये अंगूठी रख लीजिए, आप इसकी मदद से जिनज़ादे से उसी क्वार्टर में मुलाकात कर पाएंगे। मुझे अब बच्चों के साथ खेलना है, मुझे इजाज़त दें। ये कहकर गुलबानो वहाँ से चली गई और मैं सोचने लगा कि जिनज़ादे से मुलाकात का कौन सा वक्त होना चाहिए। तब दिमाग ने समझाया कि ऐसे कामों के लिए रात का वक्त ही ठीक है, ताकि जब सब सो रहे हों तो बगैर किसी को बताए कमरे में जाकर अंगूठी घुमाऊंगा और जिनज़ादे को हाजिर करूंगा। मैं दिल ही दिल में जिनज़ादे से मिलने का मंसूबा बना रहा था। रात हुई तो हम सब घर वालों ने खाना खाया और बच्चे सोने के लिए दूसरे कमरे में चले गए। जब आधी रात बीत चुकी तो मैंने अंगूठी घुमाई और देखा कुछ ही लम्हों में वो जिनज़ादा मेरे सामने था। मैं खुश भी था और हैरान भी। जिनज़ादे ने मुझसे पूछा कि आपने मुझे क्यों याद किया। मैंने उससे बताया कि मैं उसकी कहानी में दिलचस्पी रखता हूँ और ये भी बताया कि उस रात में उससे मिलने तहखाने की तरफ गया था, लेकिन अंदर से आती सरगोशी ने मुझे बाहर से ही लौट जाने पर मजबूर कर दिया। ये सुनकर जिनज़ादे ने कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अगर उस रात तहखाने का दरवाज़ा खोलते तो बेमौत मारे जाते। मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। तुम्हारी हैरानी बजाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बाकी थी, इसीलिए तुम अंदर दाखिल नहीं हुए और 2 लालची इंसानों में से एक का काम तमाम हो गया। उस जिनज़ादे ने कहा, तो फिर तुम कातिल के बारे में भी जानते होगे। मैंने जिनज़ादे से पूछा तो वो कहने लगा, बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन शायद तुम यकीन ना करो। अगर सबूत के साथ बात करोगे तो क्यों यकीन नहीं करूँगा। मैंने कहा तो वो बोला, तुम्हारे मलिक साहब के चहीते दोस्त इंस्पेक्टर ने जो तफ्तीशी अफसर बनकर आया था, दरअसल ये कत्ल नहीं चोरी की वारदात थी। नदीम लालच के हाथों मारा गया। मैं दमसादे जिनज़ादे की बातें सुन रहा था। जब मलिक साहब खानदान समेत छुट्टियां बैरून मुल्क गुजारने का प्लान कर रहे थे, तब उन्होंने हवेली की सिक्योरिटी के लिए इस इंस्पेक्टर से रब्ता किया जो उनका दोस्त था। उसने सिक्योरिटी के लिए हामी भर ली और दिन रात सादा कपड़ों में से उसके बंदे हवेली का पहरा भी देते। उस रात इंस्पेक्टर हवेली के अंदर आया था। उसके साथियों ने यकीनन यही समझा होगा कि इंस्पेक्टर हवेली के अंदर सिक्योरिटी चेक करने गया है, लेकिन अंदर क्या होगा इस बात से सभी सिपाही बेखबर थे। तुम सब मुलाजमीन भी गहरी नींद सो रहे थे, सिवाय तुम्हारे। जब तुम तहखाने की तरफ बढ़े तब अंदर से जो सरगोशियों की आवाज़ तुम्हें सुनाई दी, वो इंस्पेक्टर और मकतूल नदीम के माबेन होती गुफ्तगू की आवाज़ थी। उन दोनों के दरमियान झगड़ा हीरे के हार पर हुआ, जो नदीम को पिछले बाग में खुदाई के दौरान मिला था। नदीम ने इंस्पेक्टर से राब्ता किया क्योंकि वो जानता था कि इतना बेशकीमत हार वो कभी फरोख्त नहीं कर पाएगा। उसे किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जो इस काम में उसकी मदद करे, और उस इंस्पेक्टर से बेहतर कौन हो सकता था। लेकिन इंस्पेक्टर ने जो सोचा उसके बरक्स हो गया। इंस्पेक्टर ने नदीम से कहा कि ये हार उसे दे, बदले में हवेली से जो लेना चाहता है ले ले। लेकिन नदीम नहीं माना और दोनों की आपस में तकरार हुई। बस खान जी, दौलत ही ऐसी चीज़ है। इंस्पेक्टर ने उसे डराने धमकाने के लिए पिस्तौल निकाला। उसका इरादा शायद कत्ल करना था, लेकिन छीना चपटी में गोली चल गई और पेट चीर कर निकल गई। इंस्पेक्टर इस नई अफ्ताद के लिए तैयार नहीं था। बौखलाहट में उसने हार पकड़ा और रास्ते में जो चीज़ आई उसे फेंकता चला गया। यूं आप सबको लगा कि बाकायदा प्लानिंग के तहत चोरी की गई और चोर को रोकने की कोशिश में नदीम जान से हार गया। ये सारा किस्सा था जो मैंने आपको बता दिया। अब आप सोचें कि उस इंस्पेक्टर को कातिल कैसे साबित करना है। इतना कहकर जिनज़ादा खामोश हो गया।
میرے ذہن میں گلبانوں کی باتیں گھومنے لگی کہ ندیم کو گولی لگنے والی گولی رائفل سے نہیں پستول سے چلی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر گولی کا خول مل جائے تو یہ ثابت کرنا کہ انسپکٹر ہی اصل قاتل ہے یہ قطعاً مشکل نہیں ہوگا، لیکن ثابت کیسے کیا جائے اور گولی کا خول کہاں سے ملے گا؟ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ جن زیادہ بولا، مجھے یقین ہے آپ کوئی نہ کوئی ثبوت ڈھونڈ لیں گے، اب مجھے اجازت دیں۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی تو تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی تو میں نے تمہاری کہانی سننی ہے۔ جن زیادہ ہلکا سا مسکرایا اور کہنے لگا، کیا کریں گے میری کہانی سن کر؟ کیوں زخموں کو کریتے ہیں خان جی؟ مجھے اس لمحے یہ جن زیادہ کسی اور ہی جہاں کی مخلوق محسوس ہوا۔ میں نے اسے پہلی بار اتنا دکھی دیکھا۔ میں نے اصرار کیا کہ مجھے اس کی کہانی سننی ہے۔ اپنے سارے قبیلے کے یہاں سے کوچ کر جانے کے باوجود کون سی طاقت اسے یہاں رکنے پر مجبور کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ اس قدر زخمی حالت میں بھی رکا ہے؟ کیا اس کا قبیلہ اسے ڈھونڈ نہیں رہا؟ وہ کیوں اسے یہاں رہنے دے رہے؟ جبکہ ان سب کی رہائش اب کہیں اور ہے۔ بہت سارے سوالات تھے جو میں نہیں کر سکا تھا، لیکن جن زیادہ آنکھیں پڑھنے کا فن جانتا تھا، اس نے میرے سوالوں کو زبان دی اور ایک ایک کر کے جواب دینے لگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بزرگ کئی سالوں سے یہاں رہ رہے تھے، امن و سکون تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، نہ ہی نکالے جانے کا یہاں سے کوئی خطرہ تھا۔ بس کچھ شیاطین جنات کو ہمارا سکون سے رہنا پسند نہیں آیا تو وہ یہاں قبضے کی نیت سے آ گئے۔ پہلے انہوں نے پچھلے باغ کو اپنا مسکن بنایا، پھر آہستہ آہستہ حویلی پر قبضہ جمانے لگے۔ بات یہیں تک رہتی تو ٹھیک تھا، وہ اب شرارتوں پر اتر آئے، ہمارے بچوں اور بزرگوں کو تنگ کرنے لگے۔ انسانوں کی طرح جنات میں بھی حدیں مقرر ہوتی ہیں اور تمام قبائل قبیلے کی حدود میں رہتے ہیں۔ شیاطین یہ حدود پار کرنے لگے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اس ساری حویلی پر ان کا قبضہ ہو۔ اب ہمارے بزرگ جن کی کئی نسلیں یہاں پروان چڑھی تھی، وہ کیسے اتنی آسانی سے یہ علاقہ چھوڑ دیتے؟ بس دونوں اطراف سے جنگ کا اعلان ہوا اور کئی جنات اس جنگ کی زد میں آئے۔ ہمارے کئی مسلمان بھائی مارے گئے اور شیاطین کی کثیر تعداد بھی ختم ہوئی، لیکن وہ لوگ ہم پر بھاری پڑے رہے تھے۔ میرے دادا نے فیصلہ کیا کہ فی الحال یہ جگہ چھوڑ دینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ وہ اپنے کئی نوجوان کھو چکے تھے۔ انہیں اپنی نسل کے معدوم ہو جانے کا ڈر یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے اس حویلی سے محبت ہے کیونکہ میرا بچپن یہاں گزرا ہے، میں یہاں رہنا چاہتا تھا، لیکن مجھے سب مجبور کر رہے تھے کہ میں سب کے ساتھ ہجرت کر جاؤں۔ میں نے فیصلے کے لیے ایک دن مانگا۔ اسی رات جب یہاں سے مسلمان جنات کے قبائل نے ہجرت کی، اسی پچھلے پہر مجھے اکیلا دیکھ کر شیاطین جنات نے حملہ کر دیا۔ حالانکہ ہمارے مابین یہ طے پایا تھا کہ ہمیں ہجرت کرنے دی جائے گی، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور مجھے شدید زخمی حالت میں اپنی طرف سے مردہ سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس صبح اگر گل بانو میری مدد نہ کرتی تو میں آج آپ کے سامنے زندہ نہ بیٹھا ہوتا۔ یہ کہہ کر جن زیادہ خاموش ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ گل بانو اتنی صبح تہ خانے میں کیا کرنے گئی تھی۔ مجھے سوچوں میں ڈوبتا دیکھ کر جن زیادہ بولا، گل بانو بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی، وہ کھیل کے دوران ہی تہ خانے میں آئی کہ یہاں چھپ سکے، لیکن مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو میری مرہم پٹی کرنے لگی اور کھیل بھول گئی۔ بس اتنی سی کہانی تھی، خواہ مخواب کو تنگ کیا۔ جن زیادہ بولا تو میں نے کہا، تنگ تو نہیں ہوا، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کی یہاں رکنے کا سبب کیا ہے؟ آپ صرف حویلی سے محبت کی بنا پر تو یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ کے بزرگوں نے تمام عمر یہاں گزاری ہے تو ظاہر ہے آپ سے زیادہ تو انہیں اپنی رہائش گاہ سے محبت ہوگی۔ وہ سب لوگ تو یہاں سے کوچ کر گئے، لیکن آپ یہاں موجود ہیں، اس کی وجہ صرف یہ حویلی تو نہیں ہے۔ آپ مجھے کھل کر بتائیے، ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ جن زادے نے کہا، آپ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں خان جی؟ جن اور انسان کبھی ایک ہو سکتے ہیں بھلا؟ ان کا ملاپ ناممکن ہے۔ جن زادے کی بات سن کر میں غصے سے سرخ ہوا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ میں غصے سے بولا تو جن زادے نے حیرانی سے مجھے دیکھا، پھر بات سمجھ آنے پر بولا، خان جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، گلبانو کو میں بچوں کی طرح سمجھتا ہوں، اس نے میری بہت مدد کی، میرا ہر طرح سے خیال رکھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس سے محبت میں مبتلا ہوا ہوں۔ مجھے ملک صاحب کی بڑی صاحبزادی سے محبت ہے، یہ بات میرے علاوہ اب آپ کو پتہ ہے۔ میں نے تو انہیں محسوس بھی نہیں ہونے دیا کہ ایسا کچھ چل رہا ہے۔
बल्कि वो तो शायद हम जिन्नात के वजूद से ही सिरे से मुनकिर हैं। उनके ख्याल में हमारा वजूद बस कहानियों में मिलता है, हकीकत का हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि हमारा जिक्र कुरान में भी है, लेकिन आपके माशरे में कम ही लोग इस बात पर ईमान रखते हैं। खैर, मैं चाहता था कि मलिक साहब की फैमिली वापस आए तो एक अलविदाई नज़र महबूब हस्ती पर डालकर रुखसत हो जाऊं, लेकिन अब इस कत्ल वाले वाक़े के बाद मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। इसलिए मुझे उन लोगों का इंतज़ार किए बगैर ही चले जाना चाहिए। जिनजादे ने बात मुकम्मल करते हुए कहा। मैंने जिनजादे से कहा कि अगर वो चाहे तो मैं मलिक साहब को बुलवा सकता हूँ। इसी कत्ल के सिलसिले में अगरचे सब मुलाजमीन को उस खरांट किस्म के इंस्पेक्टर ने सख्ती से मना किया था कि मलिक साहब और उनके ख़ानदान को इस कत्ल की इत्तला ना दी जाए, क्योंकि इस सूरत में उनकी छुट्टियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन जिनजादे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं ये रिस्क लेने को तैयार था, लेकिन जिनजादे ने मना किया और कहा कि फ़िलहाल आप इस कत्ल के मरकज़ी मुलजिम को मुजरिम साबित करने की कोशिश करें। मैं एक आध दिन में ये जगह वैसे ही छोड़ कर जा रहा हूँ, क्योंकि अब इस हवेली पर शयातीन जिन्नात काबिज़ हो चुके हैं। वैसे तो ये जिन्नात आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि बगैर किसी वजह के इंसानी दुनिया में इंसानों के साथ छेड़छाड़ करना हमारा उसूल नहीं है। लेकिन फिर भी ये जिन्नात शरारत करने पर आमादा हूँ, तो आप ये ख़त रखें और ये अंगूठी भी। ये ख़त शयातीन जिन्नात के सामने करेंगे तो वो इस मायदे की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे जिसकी रूह से वो इंसानों से दूर रहने के पाबंद हैं, और ये अंगूठी घुमाने से हमारा पूरा कबीला आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। आप मुझे इजाज़त दें, मैंने आपको सारी तफसीलात से आगाह कर दिया है। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। किसी भी ख़तरे की सूरत में आप बिला झिझक इस अंगूठी को घुमा दीजिएगा, मैं अपने पूरे कबीले समेत हाजिर हो जाऊंगा। जिनजादे ने कहा और यहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। मैंने उससे पूछा कि यहाँ से कहाँ जाओगे, तो वो कहने लगा, मैं अपने कबीले के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला यहाँ नहीं रह सकता। हम हमेशा ग्रोहों की सूरत में रहते हैं। मैं अब चलता हूँ, जिनजादे ने कहा और वहाँ से गायब हो गया। मैंने उस खत को इंतहाई एहतियात से अपने कुर्ते की जेब में छुपाया और अंगूठी अपनी उंगली में इस तरह पहन ली कि उसके नग वाला हिस्सा सामने वाले को नज़र नहीं आता था। सुबह हुई तो मैं नाश्ते के लिए बच्चों के पास जाकर बैठा, जहाँ मुझे गुलबानो ने बताया कि उसे तय खाने में से गोली का एक खोल मिला था। जिस दिन नदीम का कत्ल हुआ, वो खोल उसने मुझे दिखाया तो मैं समझ गया कि ये इंस्पेक्टर से गोली चली है। उसी का खोल है जिसकी मदद से हम उसे पकड़ सकते हैं। मैंने वो खोल अपने साथी मुलाजिम को दिखाया, जिन्होंने कहा कि इसे हम दूसरे थाने में दिखाएंगे ताकि ये इंस्पेक्टर फरार न हो सके। हम अगले दिन सब्जी लेने के बहाने हवेली से निकले, क्योंकि हवेली के अंदर और बाहर पहरा बहुत सख्त था, इसीलिए हमें बहाने से निकलना पड़ा। मैं और माली बाबा बड़ी मुश्किल से दूसरे थाने में पहुंचे। वहां जाकर सारी सूरत हाल बयान की। हमें अपनी जान का खतरा है। मैंने उस थाने में मौजूद बड़े ऑफिसर से कहा, तुम्हें मुकम्मल अमान दी जाती है। थानेदार ने कहा और सिपाहियों को लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। उस इंस्पेक्टर ने नदीम का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, बल्कि दावा किया था कि वो बगैर किसी पोस्टमार्टम के असल कातिल को पकड़ लेगा। उसने कातिल को क्या पकड़ना था जो खुद असल मुजरिम था। मैं और माली बाबा पुलिस के साथ हवेली पहुंचे। हमारे साथ दूसरे थाने की पुलिस देखकर सादा कपड़ों में मौजूद पुलिस एहलकार जो इंस्पेक्टर की तरफ से हवेली की हिफाजत के लिए खड़े थे, वो इधर उधर हो गए। दूसरे थाने ने आते ही पूछा कि मकतूल की मैयत कहाँ है। मैंने बताया कि वो तो इंस्पेक्टर साहब ले गए, ये कहकर कि वो उसे दफना देंगे। अब थानेदार को भी शक हुआ कि इंस्पेक्टर इस कत्ल में मुलव्वस जरूर है, वरना वो लाश को फौरन ठिकाने लगाने का बंदोबस्त न करता। इंस्पेक्टर ने अपनी तरफ से चाल चली थी कि हम सबको यही शक होगा कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाला नदीम रात के अंधेरे में किसी चोर के हाथों मारा गया। शायद किसी को इंस्पेक्टर पर शक न होता अगर वो खुद को बचाने के चक्कर में सबूत पीछे न छोड़ जाता। खैर, उस थानेदार ने मुझे कहा कि वह हवेली का मुकम्मल जायजा लेना चाहता है। मैंने उन्हें कहा कि जैसे आपकी मर्जी, आप जैसे चाहें अपनी तसल्ली करें, लेकिन हमें आज ही कातिल सलाखों के पीछे चाहिए, वरना वो हमारी जान के दर पे हो जाएगा। थानेदार ने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो पूरी कोशिश करेंगे कि इंस्पेक्टर को सारे सबूतों समेत गिरफ्तार करें। इसके लिए उन्हें हवेली का हर कोना देखना था ताकि किसी तरह कोई और सबूत हाथ लग सके। मैं उन्हें लेकर तहखाने की तरफ आया और उन्हें बताया कि यह दरवाज़ा इसलिए बंद रहता है क्योंकि इस हवेली के इस कमरे के बारे में मशहूर है कि यहाँ जिन्नात बसेरा करते हैं। मलिक साहब इस बारे में जानते हैं
इसी लिए उन्होंने सबको यहाँ जाने से मना कर रखा है। थानेदार ने कहा, फिर तो यहाँ जाना ज़रूरी है। ये कहकर उसने दरवाज़ा खोला और टार्च से अंदर रोशनी की। मैंने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की, जिससे तहखाना मुकम्मल तौर पर रोशन हो गया। थानेदार साहब ने इधर उधर बिखरी चीज़ों को टटोलना शुरू किया। तहखाने में मौजूद सामान ज़्यादातर बेकार था। एक तरफ गर्द से हटी कुछ किताबें थी, जिन पर थानेदार ने हाथ मारा तो कोई चीज़ नीचे गिरी। उसने झुककर उठाया तो वो शनाख्ती कार्ड था। मैंने ज़रा गौर से देखा तो ये शनाख्ती कार्ड उसी इंस्पेक्टर का था जो हम पर रौब जमा कर गया था। गोली के खोल के बाद ये दूसरा सबूत था जब मैंने उस थानेदार को दिया। थानेदार के हाथ में अब 2 ठोस सबूत मौजूद थे। उसने तहखाने से निकलकर मुझे कहा कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करके मजबूत केस बनाऊंगा, ऐसा कि फांसी के फंदे से ना बच सके। हमारे तहखाने से बाहर निकलने की देर थी कि हवेली की फिजा फायरिंग की आवाज़ से गूंज उठी। हम घबरा कर बाहर भागे तो देखा वो इंस्पेक्टर साथियों समेत सरेआम फायरिंग कर रहा है, गोया कह रहा हो कि मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, जो कर सकते हो कर लो, इससे पहले कि हम भी कोई उसकी अंधी गोलियों का शिकार होते। मैंने अंगूठी घुमाई और जिन्नात का पूरा कबीला मेरी मदद के लिए हाजिर हुआ। ये उन जिन्नात का आबाई इलाका था, इसलिए उन्हें हवेली से मोहब्बत थी, तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उस हवेली के दरो दीवार खून में नहाएं। ये तमाम मुसलमान जिन्नात इंसानों की शक्ल में नहीं आए, लेकिन मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर सकता था। कबीले के सरदार, जो कि एक बुजुर्ग जिन थे, उन्होंने थानेदार की पिस्तौल पकड़ ली। अब तो इंस्पेक्टर गुस्से और हैरानी से पागल होने को था। उसकी सारी प्लानिंग पर पानी फिरने वाला था, क्योंकि उसके साथियों के पिस्तौल भी जिन्नात ने अपने कब्जे में कर लिए थे। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रही थी कि वो किस दीवार में अपना सर मारे। उधर थानेदार साहब ने उस इंस्पेक्टर को उसके साथियों समेत हथकड़ियाँ लगाई और मुझ समेत तमाम मुलाजमीन को तसल्ली देकर अपने सबसे बड़े हरीफ को लेकर थाने चला गया। इंस्पेक्टर पर हार चोरी और कत्ल का पर्चा बैक वक्त काटा गया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लालच भी क्या बुरी चीज़ है। हार बेचकर पैसा तो नदीम को मिल ना सका, ना ही इंस्पेक्टर को, उल्टा वो दोनों जान से गए। नदीम के कत्ल का मुकदमा इंस्पेक्टर पर दायर किया गया। ठोस सबूत तो मौजूद थे ही। उन्होंने सरेआम फायरिंग करके अपने गले में फंदा डाल लिया। चंद समातों के बाद अदालत ने इंस्पेक्टर को मौत की सज़ा सुना दी। अब वो सलाखों के पीछे अपनी मौत का मुंतज़िर था। इस वाक़े के कुछ ही दिन बाद मलिक साहब छुट्टियां गुजारकर वतन वापस आ गए। जब उन्हें नदीम की मौत का इल्म हुआ तो वो बहुत गमगीन हुए। उन्हें हम तमाम मुलाजमीन से मोहब्बत थी और वो हम सबसे यकसा सलूक रवा रखते थे। मैंने उनकी बेटी कभी नहीं देखी थी, लेकिन जिनज़ादे की वजह से अब मैं उसे ज़रूर देखना चाहता था और मेरी कोशिश यही थी कि बस एक बार जिनज़ादा अपनी महबूबा का दीदार कर ले, फिर भले ही यहाँ से कूच कर जाए। मैंने जिनज़ादे की ये ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। इस मकसद के लिए मैंने अपनी बीवी से पूछा कि मलिक साहब की बेटी हवेली में किस जगह अपना ज़्यादा वक्त गुजारती है, ताकि जिनज़ादा उसे नज़र भर कर देख ले और फिर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाए। मेरी बीवी ने बताया कि मलिक साहब की बेटी का ज़्यादातर वक्त अपने बाग के पिछले हिस्से में गुजरता है, जहाँ पर वो सुबह सवेरे और शाम ढलते ही पहुँच जाती हैं। यूँ मलिक साहब की बेटी के मुतल्लिक मेरी बीवी की दी गई तमाम तर मालूमात मैंने उस जिनज़ादे को मुकम्मल बता दी कि वो किन किन औकात में उसे कैसे देख सकता है। फिर अगली ही सुबह मेरी दी गई मालूमात के मुताबिक वो जिनज़ादा अगले दिन सुबह सवेरे मलिक साहब की बेटी को एक नज़र देखने के लिए बाग की तरफ चला गया। उस जिनज़ादे ने सुबह सवेरे अपनी महबूबा को वहाँ देखकर एक नज़र उसका दीदार करके वो वापस अपने कबीले की तरफ चला गया, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से जानता था कि उसकी मोहब्बत के यकतरफा होने के साथ साथ उसकी मोहब्बत का उससे मिलना भी नामुमकिन है। तो फिर वो एक शराब के पीछे अपनी ज़िंदगी आखिर क्यों ख़राब करे। इसलिए अब उस जिनज़ादे को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि ये जगह उसके लिए छोड़कर चले जाना ही बेहतर था। आज मैं भी काफ़ी दिन बाद बहुत पुरसुकून नींद सोया था, क्योंकि अब हवेली में भी मुकम्मल तौर पर सुकून है। हमारे बच्चे भी अब खेलते हुए अक्सर तहखाने की जानिब चले जाते हैं।
میں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ بھی دیکھ لیا ہے۔ جلد ہی میری بیٹی گل بانو اپنے گھر کی ہو جائے گی، لیکن اتنے سال گزر جانے کے باوجود مجھے آج بھی وہ رات یاد آتی ہے تو میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگ جاتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔